हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है आपके फेवरेट रिएक्शन चैनल में। और आज हम लेके आए मास्टर के डिलीटेड सीन का रिएक्शन। और ये जो हमें बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, बिकॉज हमने कब से सीन्स कर लिए था और उसके बाद हमने मास्टर को डाला नहीं था। लोगों को आ रहा था कि मास्टर का डिलीटेड सीन आ चुका है, तो उसका जरूर रिएक्शन करो। और ये जबकि आया था जब हम लोग क्लाइमैक्स के पहले जब हम सीन कर रहे थे, तब के अराउंड ये आ चुका था। लेकिन मेरे को था कि नहीं, ये लास्ट में करेंगे या तो फिर देखेंगे कैसे करेंगे। लेकिन लोगों का आया कि भाई देखो बहुत कमाल का है, तो फिर देखते हैं कैसा होता है। डिलीटेड सीन है और इसको नहीं डाला गया, क्यों नहीं डाला गया वो भी शायद इसमें कुछ रीजन पता लगे, तो देखते हैं कैसा होगा। यस, देखने में काफी मजा आएगा बिकॉज मास्टर मूवी के हमने इतने सारे रिएक्शंस किए हैं एंड उससे पता लग रहा था कि वो कितनी इंटरेस्टिंग मूवी है। एंड उसके बाद अभी डिलीटेड सीन भी है। वैसे काफी सारे मूवीज के डिलीटेड सीन यूट्यूब पे आते हैं, बट वो आई गेस इतने नहीं चलते जितना ये चल रहा है। एंड आप लोग ने भी काफी रिकमेंड किया ये सीन के बारे में, तो देख लेते कि इसमें ऐसा क्या है, क्यों, क्या रीजन था कि ये फिल्म में नहीं डाला गया। तो देखते हैं कि इस सीन में क्या है। वही तो कमाल का होगा। फिर आप भी देखो, हम देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। King is an art. தோனி ப்ரெஷரான சுச்சுவேஷன்லையும் கூலாக டிசிஷன் எடுக்கிறதுனால தான் நாம் எல்லாருமே அவரை கேப்டன் கூல்னு கூப்பிடுறோம். எக்ஸ்கியூஸ் மீ சார். சார், சவிதாவோட அப்பா கேஸ் வாபஸ் வாங்குறாராம். பிரின்சிபல் ரூமில் பேரண்ட்ஸ்குள்ள காம்ப்ரமைஸ் பேசுகிறாங்க. கொஞ்சம் சீக்கிரம் வாங்க சார். Good. Shake your hands, I say. Come on. So these are the two. Sorry for the disturbance, ma'am. Please excuse. Savita. Sir, I'm in the middle of a class here. You can't barge in like this. இல்லைண்ணா, சவிதா கொஞ்சம் கூட்டிகிட்டு போகணும் அர்ஜென்ட். வாமா. சார் வேணாம் சார், விட்டுருங்க வாமா, சார். நான் வாமா. சொல்றது சார், நான் வரல You சார். may திரும்பி continue, பிரச்சனை miss. Charulata. Whatever. Thank you. சார் சொன்னா கேளுங்க சார். Excuse me. வேணாம் சார். लेकिन என்னை ये விட்டுருங்க, शॉर्ट நான் வரல ट्रेलर में था। ट्रेलर में था, मैं वही सोच रही हूँ। ப்ளீஸ் சார். I'm going to complain to the principal about this. நாங்களும் அங்கே தான் போகிறோம், வாங்க. சார் வேணாம் சார், சொன்னா கேளுங்க சார். Jenny. சார் Jenny. வேண்டாம் சார். ஒரு பிரச்சனை நிமிஷம். வேண்டாம் சார். எல்லாம் இங்க முடிஞ்சிருச்சு. Don't overreact and don't create ruckus here. Sir, என் பெர்மிஷன் இல்லாம கிளாஸ்க்குள்ள வந்து he just took her, sir. இங்க பாரு ஜெனி. அவங்க பேரண்ட்ஸ் சமாதானமா பேசி சுமூகமா போறதா முடிவு பண்ணிட்டாங்க. சார் இதை இதோட விட்டுருங்க சார், நான் பாத்துக்கிறேன் சார், ப்ளீஸ். சார், நான் இந்த பிரச்சனைக்காக மட்டும் காம்ப்ரமைஸ்க்கு வரல. அவர் என் பையன் மேலே கை வச்சிருக்காரு. நான் சும்மா விட போறதில்ல. அவன் என்ன தப்பு பண்ணா கை வைக்கிற அளவுக்கு? சார் இது எல்லாத்துக்கும் ஒரு வகையில் இவர் தான் சார் காரணம். வித்தியாசமா கிளாஸ் எடுக்கிறேன்னு பசங்க பொண்ணுங்களை தொட விடுறது, தொட்டு பேச விடுறது, பக்கத்துல உரசிக்கிட்டு உட்கார விடுறது. அப்புறம் பசங்க என்ன சார் பண்ணுவாங்க? உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி ட்ரெஸ் போட்டுக்கோங்கன்னு சொல்லி பொம்பளை பிள்ளைங்களை அவங்க இஷ்டத்துக்கு அறிவுரிமா வர விட்டா सब कंप्लेन தப்பு कर रहे हैं। நடக்கத்தான் செய்யும். அதானே, இப்படி எல்லாம் செஞ்சா ஏன் சார் பசங்களுக்கு ஒரு பிடிக்காது? அதான் தலையில தூக்கி வச்சுட்டு ஆடுறாங்க. நான் இல்ல. சார் எஸ் சார், உயிரை வாங்குறீங்க. அசிங்கமா இருக்கு சார், போலாம் சார். Jenny, look, the entire management is against you. ஃபவுண்டர்னால தான் நீங்க இருக்கு. Behave yourself. மீறின இங்க CCTV இருக்கு. அந்த ஃபுட்டேஜை கரஸ்பாண்டன்ட், போலீஸ், பிரஸ்ன்னு ஒவ்வொருத்தருக்கா போட்டுக்கிறாங்க. And you know about me. கேக்குதா? करने के लिए நான் தான் தரவன. அவன் தான் வீர்த்தம். அதுக்கு என்ன இப்போ? ओ बोल दिया। ये रखना चाहिए था நீங்க सीन। அடிக்க வேண்டிய இடத்துல அடிச்சிருந்தீங்கன்னா இவனை நான் ஏன் அடிக்க போகிறேன்? சவிதா இங்க வா. அன்னைக்கு என்னம்மா ட்ரெஸ் போட்டிருந்தா? சொல்ல, என்ன ட்ரெஸ் போட்டிருந்தா அன்னைக்கு? அன்னைக்கு என் பர்த்டே சார். அம்மாவோட புடவை கட்டியிருந்தேன். सारी அது என்ன சொன்னீங்க? ட்ரெஸ். இன்னும் எத்தனை நாளைக்கு பொண்ணுக்கு போகிற ட்ரெஸ்ஸை குறை சொல்ல முடியும்? கொஞ்சம் மாதத்துக்கு முன்னாடி ஒரு எக்ஸிபிஷன், அதில் ரேப் அண்ட் மர்டர் செய்யப்பட்ட பெண்கள் போட்டிருந்த ட்ரெஸ் வச்சிருந்தேன். அதில் ஸ்கூல் யூனிஃபார்ம், போலீஸ் ட்ரெஸ், முழுசாக மூடி இருந்த பர்தா, பெரும்பாலும் உங்கள் கணக்குப்படி நல்ல ட்ரெஸ் தான். அது ஒரு கை குழந்தை சாகும்போது வெறும் பேம்பஸ் மட்டும் தான் மேடம் போட்டிருந்ததா. என்ன பேசுறீங்க? தொட்டு பேசுறது தப்பு, ஒட்டி உட்கார்றது தப்புன்னு சொல்றதை விட்டுட்டு எப்படி தொடணும்னு சொல்லி கொடுங்க. மா இங்க வாங்கம்மா. இந்த ஒரு வாரம் சஸ்பெண்ட் எல்லாம் எதையும் மாத்தாது. இங்க பிரச்சனைங்க தப்போட சைஸ் பெருசாகவும் தண்டனையோட சைஸ் சிறுசாகவும் இருக்கிறது. சவிதா தினம் இவனுங்களை இங்கே பார்க்குற மாதிரி சுச்சுவேஷன் வந்தாங்க. சவிதா இப்போ ஒன்று உள்ளே போனால் செஞ்சது தப்பு. भाई पुलिस का வெளியே வந்தால் இன்னொரு பொண்ணுகிட்ட தப்பு பண்ணக்கூடாது. இப்போவும் இவங்களை ஜெயிலுக்கு அனுப்பலான்னு கண்டிப்பாக இங்கே இன்னொரு தப்பு பண்ணுவாங்க, என்கிட்ட சிக்குவாங்க. அப்படி மாட்டினா இனி பரம்பரைக்கு வாரிசு வராத மாதிரி நானே அறுக்கி. சொல்லுங்க, என்ன பண்ணலாம்?
போலீஸ்க்கு கால் பண்ணுங்க சார். जोरदार. சார் 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 எடுத்துக்கோங்க. ஏய் எனக்கு அது பர்த்டே ஓ சார். ஹாப்பி பர்த்டே. Thank you, ஃபாரின் சாக்லேட்டா எல்லாத்துக்கும் बाप रे। ये सीन को क्यों डिलीट किया ये समझ नहीं आया कि था ज़बरदस्त सीन था एंड बहुत अच्छा यहाँ पे इंस्पिरेशनल स्पीच दिया था यहाँ पे तलपति विजय जी ने एंड किस तरीके से वो समझा रहे थे पूरा का पूरा. मेनली चीज़ ये थी कि लाइक ये अगर हम समझे तो ये मेरे ख्याल से जो हमने जेडी इंट्रो सीन किया था ये उसके प्रीटेक्स्ट का सीन लग रहा है कि लाइक ये पहले आने वाला सीन था कि लाइक यहाँ पे जैसे उनकी मदर ने बोला कि पुलिस को बुला लो, उसके बाद फिर वो सब हुआ जैसे हमने जो जेडी इंट्रो सीन में देखा था कि वो आते हैं एंड वो भागते हैं उसके पीछे और उसको वो कनाडा उसके जो पेरेंट्स होते हैं उसको कनाडा भगाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ से उसको बचाना चाहते हैं एंड फिर कहीं ना कहीं जाके जेडी उनको पकड़ लेते हैं मेट्रो से, फिर उसके ऑटो से पकड़ के लेके आता है, फिर वो उनको जाके पुलिस में दे देते हैं. तो इसका कुछ ऐसा कुछ मेरे ख्याल से सीन होगा पूरा एंड ये मेरे ख्याल से तभी शायद डिलीट किया गया होगा क्योंकि अगर ये पहले डाल दिया गया होता तो जेडी का इंट्रो उतना मैसिव नहीं हो पाता, फिर वो थोड़ा लंबा सीन हो जाता है एंड वो जो स्टार्टिंग इम्पैक्ट डालना होता है ना फर्स्ट इम्पैक्ट वो कहीं ना कहीं नहीं डाल पाते तो इसलिए छोड़ा गया. पर ये सीन बहुत अपने आप में बहुत इंपैक्टफुल था इसलिए इन लोगों ने डिलीटेड सीन करके इसको यूट्यूब पे डाला एंड बहुत ज़बरदस्त लगा. यस जबरदस्त सीन था एंड देख के भी ऐसा लग रहा था कि सीन मूवी में भी डालना चाहिए था बट जैसे कि आपने कहा कि फिर वो उनका इंट्रो शायद वैसा ना हो पाता बट स्टिल इन्होंने ये डिलीटेड सीन करके भी डाला ना यूट्यूब पे तो ऑफ कोर्स सबने देखा ही होगा ये सीन है ना तभी इतना हमें भी रिकमेंड हुआ एंड ये सीन लिटरली बहुत इन्होंने जो स्पीच दी ना लास्ट में जब इन्होंने लड़की से पूछा कि वो क्या पहने हुई थी तो शी सेड साड़ी, वो भी उनकी मदर की. तो पहली बात तो ये कि ड्रेस इज नॉट अ रीजन कि वो कुछ भी करे मिसबिहेव लड़की के साथ एंड प्लस शी वाज वेयरिंग साड़ी. तो वो जो लेडी थी जिन्होंने कहा कि ड्रेस कोड वाज द रीजन तो उन्होंने ये कहा ही कैसे. और चलो अगर उन्होंने ऐसा कुछ पहना होता भी तो एक लेडी ही ये बात बोल रही है तो ये बात मुझे एक मतलब अजीब लगी कि एक लेडी ही इस चीज़ को सपोर्ट कर रही है और ऐसी बात बोल रही है कि मतलब उन्हें ये नहीं, उनकी तो थिंकिंग एटलीस्ट इस मैटर में ब्रॉड होनी चाहिए थी. बट वॉट एवर इट इज़ इट वॉज अ सीन जो डिलीट किया गया था मे बी उनके इंट्रो की वजह से बट ओवरऑल बहुत अच्छा सीन था. एंड लास्ट में भी जब वो लड़के की मदर ने ही बोल दिया कि कॉल द पुलिस तो वो एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट डाल रहा था क्योंकि पूरे सिस्टम ने तो मैटर को दबाने की कोशिश की बट उसकी मदर को जब रियलिटी का पता चला तो उन्होंने ही कहा कि कॉल द पुलिस तो वो एक अच्छी बात थी. तो सीन काफी अच्छा था एंड वही चीज़ था कि लाइक उनकी मदर के सामने उनको थप्पड़ मारे एंड फटाफट उसे निकलवाया. नहीं तो अगर वो सच नहीं बोलते तो उनकी मदर को तो यकीन ही नहीं था कि भाई मेरा बेटा ऐसा कुछ कर सकता है. तो उन्हीं के सामने उनको मारा पीटा और उन्हीं के सामने फिर उनको निकलवाया एंड दोनों ने फिर बोला कि नहीं हाँ हमने छेड़ा था और हमने ही वो वीडियो बनाई थी एंड हमने ही वो पास ऑन की थी. तो फिर वो बहुत सही लगा एंड जो जिससे वो पूरा स्पीच हुआ फिर वो उनका ट्रूथ निकलवाया एंड जो उनको सजा हुई तो बहुत कमाल का सीन लगा. आप लोग कैसे लगा कमेंट में जरूर बताएगा और फिर आपको इसका रीज़न क्या रहता है कि इसको क्यों डिलीट किया गया था तो वो भी जरूर बताएगा. तो ऐसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए. बाय.